Once more, Assalamu alaikum. Okay, the quotation is that never cry. Never cry for the person who hurts you. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. Never cry for the person who hurts you. Never cry for the person who hurts you. अल्फाज जैसे निकाल रहा हूं वैसे ही चाहिए. Never, never cry for the person who hurts you. Never cry for the person who hurts you. Just smile. Just मत पढ़ना इसको. टा मत निकालिएगा. Just smile and say. Just smile and say. Thanks for giving me the chance to find someone better than you. फिर देखिएगा. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. गजब अंदाज में जबानी सुनूंगा याद करके लेगा ये.
जी शाहीन प्लीज। नेक्स्ट शाहीन Hello. परवीन। पढ़ क्यों नहीं रही बाबू आप? Sorry, sir. Actually, I'm busy. Other work. ओके बेहतर है। शाहीन परवीन प्लीज आइए। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अरे बेटी अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह जी। नेक्स्ट जी महद आइए। Assalamu alaikum, sir. सलाम जी बाबू। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है बाबू। वाहिद आइए। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा है, खूबसूरती की जरूरत है मजीद और। जी अजलफ आइए। अजलफा अस्सलाम सर। प्लीज। अस्सलाम सर। जी जी पढ़ो बेटे। Never cry for the person. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say thanks. Thanks for giving me the chance टू to फाइंड समवन बेटर find. देन यू। जवाब बढ़िया से याद करो बेटे और इसे। शाकिर आइए। Assalamu alaikum, sir. इतना अच्छा याद Never करिए। cry. ओके एक सांस में पढ़ दें आप इसको, बस दो बार तो पढ़ ही दें। शाबाश ब्रदर प्लीज। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. माशाल्लाह अच्छा है शाबाश। अस्सलाम आइए। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find some. चलिए शाबाश अच्छा है और बेहतर बनाई, खूबसूरती लाइए। महक। महक। जी सर। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा है माशाल्लाह। मंसूर आओ। Assalamu alaikum, sir. सलाम यस। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say to giving थैंक्स फॉर गिविंग मी द चांस टू फाइंड समवन thanks बेटर। thanks for giving chance to someone better than you. याद करिएगा इसको, जरा गड़बड़ है। नेक्स्ट आइए Assalamu बाबू। alaikum, sir. अस्सलाम यस। Never cry the person who hurts you. Smile, जैसे स्माइल एंड से। just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा है। रुमान आइए और बढ़िया करना बेटी। Assalamu alaikum, sir. सलाम यस। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा है। शेख आइए शाबाश। शेख। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thank you for giving me the chance to find someone better than you. ओके अक्सा आइए शाबाश। Assalamualaikum, sir. यस। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for गिविंग मी द चांस टू फाइंड समवन giving बेटर देन यू। चलिए आपको जरा बढ़िया सा बच्चा नहीं आ रहा जो जरा हिला के रख दे। मिनाज आओ। Assalamu alaikum, sir. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा है शाबाश। जावेद कासमी। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say thanks for giving the chance to find someone better than you. अरे शाबाश अच्छा है। अल्फी आओ। अल्फिया।
Never cry for the person who hurts you. Just smile and say thanks for giving me the chance to find someone better than you. रोशन ठीक है बेटा, चाहिए और बढ़िया करिए। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, "Thanks for giving me the chance to find someone better than you." चलिए शाबाश। सुहाना आइए। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा है आफ्ताब। Yes. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, "Thanks for giving me a chance to find a better than you." ओके अच्छा है मुबशिर। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, "Thanks for giving me the chance to find someone better than you." अच्छा है माशाल्लाह। अनीस आओ। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा माशाल्लाह, बढ़िया पढ़ा है बाबू आपने। जोया आओ। Assalamu alaikum, sir. सलाम जी बाबू। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा बेटी, अंदाज अच्छा था। अतीक आओ। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. इनक्रेडिबल, अच्छा पढ़ा है बच्चे ने, इसने देखो। हाँ तस्लीम आओ। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. ओके माशाल्लाह, अच्छा है। नजीम आओ। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Never cry for the person who hurt you. Just smile and say, "Thanks for giving me the chance to find someone better than you." अच्छा है माशाल्लाह। ओके अनस आओ। प्लीज। Never crying for the person who hurt you. Just smile and say, "Thanks for giving me the chance to find someone better than you." ओके माशाल्लाह, अच्छा है। खदीजा। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. ओके अच्छा है माशाल्लाह। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, "Thanks for giving me the chance to find someone better than you." ओके शाबाश। नेक्स्ट सुफियान आइए। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. चलिए शाबाश। ये तो देख के Assalamu पढ़ने alaikum, वाला sir. से लग रहा है। अतीक लाओ। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, "Thanks for giving me the chance to find someone better than you." माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा है बाबू, शाबाश। हुस्नुमा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट आयशा आइए। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। प्लीज। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say thanks for giving me the chance to find someone better than you. शाबाश, अच्छा है। नेक्स्ट अकलीम आओ। आइए अकलीमा। Assalamualaikum, sir. सलाम जी। Never care for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me that chance to find someone better than you. जी देख के पढ़ रहे हो बेटे। जी मारी आइए। देख के पढ़ने वाले की अलग पहचान सी हो जाती है। मारी आओ। Giving me the chance to find someone better than you. चलिए अच्छा बेटे, आवाज बहुत स्लो आई है आपकी। रेहाना आओ। Assalamu alaikum, sir. सलाम। Never cry for the person
who hurt you, just They smile and say, smile and say, thanks for giving me chance, someone better than you. चलिए शाबाश, और बढ़िया करना, शाइस्ता. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. Incredible, अच्छा पढ़ा बेटी आपने. Assalamu alaikum, sir. सलाम जी, please. Never cry for the people who hurts you. Just smile and say, thank you for giving me a better chance to find someone better than you. मेरी बेटी ने तो बदल दिए अल्फाज भी, इतना अच्छा पढ़ा है. नेक्स्ट, रुखसाना आइए. Sir, वालेकुम अस्सलाम जी. never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा बेटी, माशाल्लाह. मिसबा आइए. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा माशाल्लाह. रिदा आओ. Yes. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. Okay, माशाल्लाह. अच्छा बेटे, अच्छा पढ़ा है. मुज़म्मिल ब्रदर. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा जी, सबीहा. Assalamu alaikum, sir. Assalam. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. Okay, माशाल्लाह. Next, अज़यद आइएगा. वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. Never for the person who hurts you. Just smile and say thanks for giving me the chance to find better than you. अच्छा, इल्मा आइए. Assalamu alaikum, sir. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. मेरी बेटी गजब पढ़ा है बच्ची ने. फुज़ैल आइए. वालेकुम सर. मिस्टर फुज़ैल, 1 मिनट रुकिए बेटे. आप बच्चों, आज भी मुझे क्लास में कुछ दिखाना है. मंडे को भी और 1-2 दिन और बीच में जो हमारी ट्रांसलेशन की क्लास चलती है, तो उसका हमने एक न्यू बैच अनाउंस किया है इसी मंथ के लास्ट में, और उसकी जो टाइमिंग है वो 6:30 बजे से रहेगी. वो ट्रांसलेशन की क्लास कैसे होगी उसकी कुछ झलक दिखाऊंगा मैं आपको, उससे देखे बगैर मत जाइएगा. तो कुछ बच्चे भी रह गए हैं, 5-7 मिनट बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ. चूँकि ट्रांसलेशन की जो क्लास हमारे यहाँ की है वो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी नाफे होगी और कितनी नफा बख्श होगी वो अभी पता चल जाएगा. अभी मैं कुछ दिखाऊंगा आपको, इसलिए देखे बगैर मत जाइएगा. जी फुज़ैल प्लीज. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say thank you. Thanks for giving me chance to find someone. She has done, I think. अस्सलाम वालेकुम, सर. आपका हो गया था बेटे? सर आपने बोला था ना दोबारा पढ़ना. हाँ बेटे. सर आपने कहा था कि दोबारा पढ़ना. अरे चलिए पढ़िए, जब आ गए तो आप शाबाश चलिए. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say thank you for giving me chance to find someone better than you. अच्छा शाबाश चलिए. नेक्स्ट सऊद आइए. अच्छा बेटी. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say thanks for giving me to the chance. सर फिर से पढ़ रहा हूँ, होगा दीजिए सर. फिर से पढ़िए, कोई बात. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say thanks for giving me the chance to find someone better than you. Right, amazing. बहुत अच्छा पढ़ाया बाबू आपने. माशाल्लाह. रज़ा आओ. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा है रज़ा. असदुल्ला आइए. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Never cry for the person who hurt you. Just smile and say, thanks for giving me
The chance to find someone better than you. chance to find someone करिएगा। better and you. चलिए वसीम आइए ब्रदर। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. Okay, माशाल्लाह। Next, राजिक आए। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. शाबाश, अच्छा है बाबू। सुम्बुल। Assalamualaikum, sir. हाँ बेटी, वालेकुम सलाम। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me chance. Find someone better than you. माशाल्लाह, अच्छा है। नूर आलम। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. माशाल्लाह, अच्छा है बाबू। Than you. बढ़िया। जी, जफर आए। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than. अच्छा है, शाबाश। चलिए बढ़िया। जकी आइए। G. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. जी, जकिया थी या सफिया थी? सफिया थी। जकिया कहाँ है? G. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. जी बेटे, दोनों बहनों ने आपने कुछ मीठा खा के गला साफ नहीं किया बेटी, ऐसा लगता है। चलिए नेक्स्ट, लबीब आइए। लबीबा। नेक्स्ट, शिफा आइए। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. इनक्रेडिबल बच्ची, बेहतरीन पढ़ा इस बच्ची ने भाई, क्या बात है। लबीबा आओ, बहुत अच्छी पढ़ के गई बच्ची। पता नहीं क्या नाम था, शिफा। हाँ, लबीबा पढ़िए बाबू। हाँ बेटी, आपका नेटवर्क आपसे नाराज है, चाय वाय पिला दिया करो कभी कभी इसको बेटी। नेक्स्ट, अरीफुल आइए। अरीफुल ब्रदर आइए। शमा को बुलाइए। नेक्स्ट। Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thanks for giving me the chance to find someone better than you. अच्छा है, माशाल्लाह। जी देखिए, अब कोई रहा तो नहीं है भाई, कोई रहा हो तो आओ। आई थिंक नो वन। चलिए अच्छा है। नाउ लेट मी शो यू माय ट्रांसलेशन क्लास कंटेंट। इस तरीके का है। आई एम कमिंग विद इन फ्यू मिनट्स। देखिएगा, ये आपके सामने आपको एक बुक नजर आ रही है। ये हमारा जो कंटेंट है, ये सब किसी अंदाज से इस्लामिक है। ठीक है, सारी चीजें इस्लामी से रिलेटेड है। अल्लाह और उसके रसूल की बात इसमें है सब। ठीक है, अंग्रेजी भी सिखाई गई है साथ में। और एक वो बच्चा हमारे यहाँ 8 साल का बच्चा, शर्त है अगर आपके यहाँ कोई बच्चा हो
उसको भी क्लास ज्वाइन करा सकते हैं। इसमें ट्रांसलेशन रहेगा, रीडिंग रहेगी और ग्रामर रहेगी। ग्रामर इस क्लास को मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो तो दूसरे टीचर रहते हैं, लेकिन ग्रामर इस क्लास को मैं ही पढ़ाता हूँ। अभी सर आपको कुछ दिखाता हूँ, फिर आप देखिएगा। इसका ट्रांसलेशन वो नहीं है जो स्कूल वाला होता है। स्कूल में मैम ने इतना बड़ा चैप्टर खोला, अपने आप रीडिंग करी दनादन दनादन दनादन, और रीडिंग करने के बाद मैम ने पता है क्या किया आपकी, ऊपर मुंह उठा के बता दिया कि ये 3 भाई थे, एक लालू था, एक पीलू था, एक नीलू था। लालू सबसे बड़ा था, पीलू बीच वाला था और नीलू सबसे छोटा था। ये बीच वाला जो था लालू, ये सबसे बड़ा वाला लालू, ये बाहर से लड्डू लाया करता था और किचन में रख दिया करता था। पीलू और नीलू दोनों चालाक थे, वो लड्डू खा जाया करते थे और कहते थे कि आप तो लाए नहीं। अभी बच्चे को ये पता नहीं कि किस वर्ड का क्या ट्रांसलेशन है। वो घर पे आया और उनकी मैम ने और पूरे चैप्टर में निशान लगवा दिए, ये बेटा इस लाइन से इस लाइन तक ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, और तीसरे का यहाँ तक है। बच्चे को बता दिया कि आपका ये आना है, वही चीज बच्चे को नोट करा दी, बात खत्म, चैप्टर पूरा। उसे कुछ नहीं पता ट्रांसलेशन होता क्या है। और यहाँ मेरे यहाँ जो बच्चा आप में से ट्रांसलेशन पढ़ लेगा, मैं अल्लाह की जात पे एतमाद करके कहता हूँ कि क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक की कोई सी भी आप टेक्स्ट बुक हो, कोई सी भी रीडिंग बुक हो, वो पढ़ भी लोगे और ट्रांसलेशन भी करोगे इंशाल्लाह। देखो नए अल्फाज आते हैं तो वो तो देखने पड़ते हैं, लेकिन ये कि बंदा इस लायक बन जाएगा कि इंशाल्लाह वो रीडिंग कर सकता है। और हमारी रीडिंग उस बच्चे के लिए भी है कि जिसको कुछ रीडिंग करनी ही नहीं आती, वो भी करेगा रीडिंग, ठीक है। अब जरा अंदाज देखिए पढ़ाने का क्या रहता है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, हर हर वर्ड का ट्रांसलेशन। पहले तो आप पिक्चर देखें, ये पिक्चर में अभी दोनों आए हैं और ये दोनों के दोनों आकर अभी खेलना शुरू करते हैं। तो ये अपने बारे में बता रहा है बंदा, क्या बता रहा है, ये कह रहा है आई बिगिन, मैं शुरू करता हूं, ऑल सारे, वर्क काम, मैं शुरू करता हूं सारे काम। यहाँ आपको ये बताया जाएगा सारे किसका तर्जमा है, ऑल का। शुरू करता हूं किसका तर्जमा है, बिगिन का। मैं किसका तर्जमा है, आई का। मैं शुरू करता हूं ऑल सारे वर्क काम, कैसे, विद, साथ, these वर्ड्स, इन अल्फाजों के, या इन अल्फाजों के साथ। साथ किसका तर्जमा हो रहा है, these का। अल्फाज किसका तर्जमा है, वर्ड्स का। ये जो हो रहा है ये, या इन अल्फाजों में जो इन है, ये किसका हो रहा है, ये these का हो रहा है। आपको बताया जाएगा कि करीब में कोई एक चीज हो तो दिस आता है, करीब में कई सारी चीजें हो उनकी तरफ इशारा करना हो तो दीज आता है, दूर कोई एक चीज हो उसकी तरफ इशारा करना हो तो दैट आता है, और कई सारी चीजें अगर हो तो उसके लिए दोज आता है। ये हर हर चीज यहाँ आपको बताई जाएगी। अच्छा आगे एक दो चीज और तो दिखा दूं, चलिए। ये तो ये पहला लेसन है भाई साहब, मतलब इससे पहले एक एक दो लेसन और है जो मतलब जिसमें मैट कैच फैट लैट इस तरह से शुरू किया हुआ है, ठीक है। मतलब वो एकदम उस बच्चे के लिए जिसको कुछ आता ही नहीं ना, ठीक है। लेकिन ये दूसरे दिन तीसरे दिन ये शुरू होने लगता है, ये भी बुनियाद है उसकी। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, देखिए भाई आगे इसने अपना बच्चे ने अपना तारुफ कराया। ये इसने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम किस तरह लिखना है आपको सही स्पेलिंग के साथ, देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये इन्होंने ये दे दिया, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। देयर का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। अब सवाल ये होगा सर देयर का ट्रांसलेशन क्यों नहीं जब लिखा हुआ है, तो ये भी बताया जाएगा कि देयर का ट्रांसलेशन नहीं है, लिखा हुआ है, लेकिन क्यों नहीं है यही उस क्लास में बताया जाएगा। मोहम्मद इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, मोहम्मद हैं, ये हैं किसका तर्जमा है, इज का भाई साहब, ऐसे बताया जाएगा आपको। मोहम्मद हैं, कौन है, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह अल्लाह के नबी। के किसका तर्जमा सर, के अल्लाह के, ऑफ का भाई साहब, ऐसे पढ़ाया जाएगा उसमें। आगे चलते हैं, थोड़ा सा रुकिए जरा। अरे मेरे भाई देखो ये बच्ची, अरे वाओ माशाल्लाह, देखिए एक बच्ची आपको नजर आ रही है, ये सोने की तैयारी में है, थक गई है। जकरिया सर की इसने क्लास ली थी 10 PM की, ये थक गई बेचारी है। अब पता क्या कर रही है, आई से द कलीमा, आई से द कलीमा, मैं कहती हूँ कलीमा। कब कहती हूँ पता है, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले। ये पहले किस लफ्ज का तर्जमा है, पहले, बिफोर का भाई साहब, और सोना स्लीपिंग का।
अच्छा दूसरी बात, आई स्लीप अर्ली, मैं सोती हूं जल्दी। सर ये जल्दी किसका तर्जमा है? अर्ली का। आ रही बात समझ में? इस तरीके से। अच्छा एक चीज और जो इसमें ग्रामर होगी, आपको मैं ग्रामर नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ, मैं तो डायरेक्ट स्पीकिंग सिखाता हूँ। ग्रामर बिल्कुल अलग है। ग्रामर में फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आया, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, एक लफ्ज आगे बढ़ाया हमने वेल, आई स्पीक इंग्लिश वेल। क्या ट्रांसलेशन है? मैं गजब अंग्रेजी बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश वेल या आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हूँ। ये जो वर्ड्स हैं, आई क्या है, स्पीक क्या है ग्रामर में, इंग्लिश क्या है ग्रामर में, और ये जो फ्लुएंटली है ये लफ्ज क्या है, या वेल है ये लफ्ज क्या है। तो बताया रहा है कि भाई साहब ये आई जो यहाँ पर है, ये ग्रामर में अगर इसकी दुनिया में जाओगे तो ये प्रोनाउन है, और आगे आओगे स्पीक तो ये ग्रामर की दुनिया में वर्ब है। क्यों है? हर एक की वजह। इंग्लिश है, ये ग्रामर की दुनिया में क्या है? नाउन है। वेल ग्रामर की दुनिया में क्या है? एडवर्ब है। फ्लुएंटली क्या है? एडवर्ब है। क्यों है? इन सब के जवाब तो वही, मतलब ऐसे नहीं आपको पता ये लफ्ज वो है, ये लफ्ज अगर एडवर्ब है तो क्यों है, ये लफ्ज अगर वर्ब है तो क्यों है, ये अगर प्रोनाउन है तो क्यों है, उसकी वजह। वो क्लास अमेजिंग है, बहुत कम बच्चे उसमें रखे जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे को रोजाना सुनना रहता है। ठीक है, बहुत कम बच्चे उसमें रहते हैं। आपको इसलिए बताया गया कि आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, इसी मंथ के लास्ट आशरे में, ठीक है, ये जो 20 के बाद से दिन आ रहे हैं, इस दिन में वो शुरू होने जा रहा है। जो बच्चे आप में से इंटरेस्ट, उसकी टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, 6:30 से उसकी टाइमिंग है, 6:30 से 7:15 उसकी टाइमिंग रहेगी। ठीक है, और जो भी डिटेल बाकी आपको मालूम करनी हो, मजीद कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया है, तो फिर मुझे पर्सनल पे आप मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह इसकी डिटेल देता हूँ। ये मैंने आप लोगों के बैच को पहले बताया है, आइंदा जो दूसरे बैच हो ना, आज नहीं बताऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैं चाहता हूँ इस बैच के बच्चे उसमें आ जाएं इतने जितने मुझे चाहिए, वरना अगर मैंने उधर ऐलान कर दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो क्लास के फौरन बाद मुझे मैसेज कर देना कि सर हम चाहते हैं। और हकीकत बात ये है कि देखो ट्रांसलेशन अलग है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो स्पीकिंग अलग है, रीडिंग अलग होती है। इस सब में आप रीडिंग सीखोगे, तर्जमा करना सीखोगे, ट्रांसलेशन सीखोगे, साथ साथ ग्रामर सीखोगे। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, जो ये क्लास है जिसमें आप हैं, इसमें मैं आपको बोलना सिखाता हूँ बस, बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं सिखाता। आप सीधी सीधे अल्फाज में बात है। ठीक है, तो अगर ये मजीद चीजें भी आप एडिशनली चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, 1 डेढ़ 2 महीना अगर आप लगा लेंगे तो कोई ऐसे नहीं जिंदगी घट जाएगी। ठीक है, तो वो आप लगा लीजिए, बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।